Hello everyone, welcome to Astric.in. Our institute is the best leading high rated on Google reviews for IT training institution. Don't let the lockdown dictate your career up skills today for a better future. Get an advanced certification. Are you struggling to get high package because you are a fresher or have less experience? Then don't worry. Just do it one thing. Join our training, we will help you. This is the best time to make yourselves productive. So feel free to contact us for industrial training. We have some master platforms like web development, Android app development, data science, machine learning on cloud, and so on. We have also certification professional courses like Stat Pro, CATIA, Creo, AutoCAD, animations like 2D and 3D, digital marketing, tele, and many more, only for experienced professionals. Work on real-time scenarios as faced in multinational companies. All our courses are available at affordable cost. We want you to get ready for your career to greater heights and you achieve your dream job. So guys, enroll now. Now our session will be start. Just wait for few minutes. Let's join all the students. Thank you guys. सो वेलकम यू ऑल टू Astric.in. ये सेशन जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत सारे उनके पास क्वेश्चंस होते हैं एंड वो क्वेश्चन वो मुझे पूछते हैं बहुत बार एंड मैं उसका आंसर देता हूँ. बट इस टाइम मैंने ये सोचा कि क्यों ना उसके आंसर वही पर्सन्स दे, वही एक्सपर्ट्स दे जिन्होंने वो चीज़ की है. एंड यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, सॉरी इस साइड में दिख रहा है हमें गौरव, नीचे में निखिल एंड अथर्व. तो ये लोग जो है इन्होंने अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन बनाया है जिसके थ्रू इन्होंने अपना जो ट्रांसपोर्ट का जो चीज़ होता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, खुद के होम जो गुड्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी हो जाता है. वो ऐप का जो टोटल जो चीज़ है वो यही लोग अच्छे से बता सकते हैं. देन सेकेंड, जो आपके इतने सारे क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स ने मुझे लिख के दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे करने वाला हूँ. एक एक करके हम इन सारे क्वेश्चंस पे आएंगे. सो स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन. Yes. I am Gaurav Sharma and currently I am pursuing my Bachelor's of Engineering from Ramdev Baba College, Nagpur. I am in the final year and I love to do coding. I love surfing the web, watching cricket, and I've made a lot of projects and Pickup has been one of them, and I'm proud to say that one of our best works. Okay, thank you Gaurav. Next is our speaker is Nikhil. Please Nikhil, introduce yourself. My name is Nikhil Sahu. I am currently in final year Ramdev Baba College, computer science degree. So we all together have worked on many projects, but the recent one was the Pickup, and I have been working with Gaurav and Atharva for like 3 to 4 projects. I have been working with them for 3 to 4 projects. I have mostly worked in web and mobile application development, and I love developing something cool which will add value to the user's life or users creating something useful for someone. Okay, thank you Nikhil. And next one is Atharva. So please Atharva. Hello, my name is Atharva Udapure. I am from final year Ramdev Baba College, pursuing as a computer science engineering degree. I have been coding from a lot of time, and my specialization lies in Android development, app development, web development, and blockchain development. Okay, thank you so much Atharva, Nikhil and Gaurav. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर. तो मैं वही कर रहा था अभी. सो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो आपका आइडिया है पिकअप, ये आपको कहाँ से मिला एंड आपने कैसे डिस्कवर किया ये पिकअप जो आपका आइडिया था. सो सबसे पहले कोई एक पर्सन, ये जो आपका एप्लीकेशन है इसके बारे में एक ब्रीफली अगर आप बता सकते हो एंड अगर आप वो शो कर सकते हो तो प्लीज ब्रीफली उसका इंट्रोडक्शन दीजिए जो चीज आपने बनाया है. देन फिर हम फर्दर क्वेश्चंस पे जाएंगे. So Pickup basically is an app which is for B2B and B2C sector as well. So basically Pickup का काम क्या है, आपको घर से शिफ्ट करना है आपका घर, या फिर आपको कोई भी माल कहीं से कहीं पहुंचाना है, चाहे आप बिजनेसमैन है या फिर आप लोकल रेजिडेंट है, तो आप पिकअप यूज कर सकते हैं एंड अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. नाउ दे ऑफर अ लॉट ऑफ व्हीकल्स लाइक 1 ton से कम कैपेसिटी, 1 ton से ज्यादा कैपेसिटी एटसेट्रा. But that is the business point of view. Now talking of how we got Pickup. So we actually knew the founders
of Pickup, and they just had the idea, and they were looking for a technology partner. And our frequency, the founders and our frequency matched, and we just vibed. So we started this project, and Nikhil, Atharv, and me, we are batchmates, classmates also, and so we've always been working together. So we know each other's style of working, and the five of us, we three and the two founders came together and started on the project. ओके सो मीन्स गौरव, आपका बोलना ऐसा है कि जो आइडिया था वो फाउंडर का था, एंड आपको वो जो चीज़ थी वो उनका जो आइडिया था वो यूनिक लगा, एंड उनके पास कोई टेक्निकल पर्सन नहीं था उस आइडिया को कंप्लीट करने के लिए. सो वो लोगों ने आपके साथ टीम अप करके देन वो आइडिया उन्होंने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में लाया, राइट? यस. हाँ, ओके. सो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है मेरा, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल चुका है. सो आइडिया कहाँ से मिला? ओके, ग्रेट. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज योर कंपनी नेम? आपका कुछ जो तीनों का जो टीम अप है, सो देयर इज एनी नेम ऑफ योर ग्रुप जो आप यूज करते हो मोस्टली? So we have been working. We have been working from a lot of time, and every time we changes the company name. So for when we made team for hackathon, we named it New World Order. Before it was Devs Not Wizard, and before it was Luminaries. So we keep on changing names, but unofficially we go with the name Devs Not Wizard. ओके ओके. हमारी ऐसी कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, पर हम ऐसा प्लान करते हैं कि हम फ्यूचर में करें साथ में. ओके. एंड राइट नाउ आप सभी लोग जो है अभी भी परस्यूइंग कर रहे हो आपका बैचलर, दैट इज इंजीनियरिंग आप कर रहे हो. सो अभी कौन से ईयर में हो आप सभी लोग? फाइनल ईयर में सभी लोग हो. सीएस बैकग्राउंड से? यस. ओके ओके, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे को सेकंड इसका भी आंसर मिल गया. ओके, इनिशियली जब आपने वो जो प्रोजेक्ट था पिकअप आपने जब लिया तो क्या एक्सपीरियंस आया, क्या प्रॉब्लम्स आई, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए. कोई भी एक पर्सन, मतलब मारा पीटी हुई या क्या हुआ, या किसने कौन सा गलते जो मॉड्यूल था वो ले लिया, ऐसा कुछ? हम लोग ने पहले एंड्रॉइड एप्लीकेशंस पे काम किया है, तो हम लोग जनरली एंड्रॉइड एचडीके यूज करते थे. पर हमारा पिकअप के साथ ऐसा मोटिव था कि हमें इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाना है, ताकि अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर इफ यू वांट टू रिलीज ऑन iOS on iPhone, so there should not be a problem. So we thought of using Flutter first, but then we came settled down on React Native, because initially previously we had some experience with React, so shifting from React to React Native is very easy. It is React Native is more or less similar to React. So this was our first time working on React Native. So the main problem which we faced was getting used to the React Native, because lot of things were new, and lot of things which are done in Android SDK are like done completely differently in React Native. So that was the main hurdle in this process. Okay, वो तो थोड़ा टेक्निकल पार्ट हो गया निखिल, बट मैं पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जब भी न्यू टीम अगर हम करते हैं या फिर कोई भी क्लाइंट के साथ करते हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स आती है उनके आइडिया और हमारे आइडिया को मैच करने में, बिकॉज उनका बोला हुआ, क्लाइंट का बोला हुआ हमें डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं होता कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज यहाँ पे भी क्लाइंट है ना, जो फाउंडर जो था वो क्लाइंट है, एंड उसको जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करने में डायरेक्टली आपको ईजी पड़ा, या फिर अपने फर्स्ट डे में ही हाँ डन हम ये कर लेंगे वैसा वाला था? सो एक्चुअली कैसा हुआ था सर, जो फाउंडर है, both the founders are actually very great people. So the thing is, उन्होंने हमें काफी तरीके से they gave us a liberty कि तुम बिजनेस लॉजिक को भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, because this is a startup, so this is not that much structured. But problems काफी टाइप्स की आई, mainly technical problems भी आई, because हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी टेकअप की थी जिस टेक्नोलॉजी पे पहले कभी काम नहीं किया है, एंड जो काम करना था वो प्रोफेशनल ग्रेड का करना था, विथ मैप्स वगैरह सब कुछ इंटीग्रेट करके. उसके बाद जो बिजनेस लॉजिक था, तो कभी उनकी कोई रिक्वायरमेंट आती थी, हमारा प्रोजेक्ट किसी और डायरेक्शन में रहता था, तो वो थोड़ा बहुत टसल रहता ही था. ओके ओके. अथर्व शायद लेफ्ट हो गया, एक सेकंड में चेक करता हूं. हाँ, ज्वाइन कर रहा है सर, शायद आ गया अथर्व आ गया.
अथर्व डेटा पैक खत्म हो गया क्या? नहीं, डेटा पैक नहीं खत्म, डिस्कनेक्ट हो गया था गलती से। ओके ओके ओके, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने वैसे तो इसी में उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, बट स्टिल फिर से वही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की थी आपने, और आपको कौन सी टेक्नोलॉजी आती है? फॉर एग्जांपल मेरे को गौरव का पता है, बिकॉज मैंने गौरव को कोर जावा पढ़ाया था। सो मेरे को पता है कि वो मेरा स्टूडेंट है, तो उसने कोर जावा मेरे से पढ़ा है। बट आपने एक्चुअल कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, प्लीज़? तो अगर हम पूरे प्रोजेक्ट को सेक्टर आउट करें अलग अलग सेक्शंस में, तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल्स के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। हाँ, तो राइट। जेनेसिस स्टेज से हम देखें तो सबसे पहले यूआई और प्रोटोटाइपिंग की जाती है। राइट। तो हमने यूआई प्रोटोटाइपिंग एडोबी एक्सडी में की। हाँ। उससे हम मॉकअप्स और प्रोटोटाइप्स बनाते हैं और क्लाइंट का अप्रूवल लेते हैं कि एप्लीकेशन डेवलप होने के बाद कैसा दिखेगा। हाँ, ओके। सो अथर्व ने जो बोला दैट इज यूआई मीन्स फ्रंट एंड, जो भी एप्लीकेशन होता है जो वो कैसे दिखेगा, इसका एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है। सो यूआई इज नथिंग बट कि यूजर को क्या दिखेगा, दैट इज यूजर इंटरफेस। तो वो इन्होंने किस में बनाया अथर्व? एडोबी एक्सडी और फिग्मा। ओके। तो इन दोनों इन ये दो सॉफ्टवेयर का यूज करके इन्होंने फ्रंट एंड बनाया, देन वो क्लाइंट को दिखा के उन्होंने अप्रूवल लिया कि जो भी आउटपुट जो निकला है उनका डिजाइनिंग, ठीक है, सिर्फ डिजाइनिंग, यहाँ पे कोई फंक्शनलिटी नहीं देगा उनका यूआई, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन जो रेडी किया वो उन्होंने क्लाइंट से पास ऑन किया, देन उन्होंने गो फर्दर किए। ओके, थैंक यू अथर्व। एंड बैकएंड में क्या यूज किया आपने टेक्नोलॉजी के लिए? एक्चुअल कोडिंग किस में की, फ्रंट एंड एंड बैकएंड में? हमारा जो ऐप का फ्रंट एंड है वो रिएक्ट नेटिव में है और बैकएंड नोड.जेएस में है। सो मैंने जनरली फ्रंट एंड में काम किया है। अथर्व रिस्पॉन्सिबल था बैकएंड के लिए, गौरव और मैंने फ्रंट एंड और वेब संभाला है। ओके, फ्रंट एंड एंड वेब। एंड वेब सर्विसेज आपने यूज की है कुछ बैकएंड में? यस सर। वेब सर्विसेज मींस होस्टिंग एटसेट्रा Amazon के ऊपर था, EC2 इंस्टेंसेस पे। एंड जैसे पिकअप में थोड़ा बहुत नेविगेशन का कंपोनेंट है, सो फॉर दैट हमने गूगल क्लाउड यूज किया है विद ऑल द डिस्टेंस मेट्रिक्स, APIs एटसेट्रा। ओके। एंड और एक दो चीजें यूज की। ओके, कोई बात नहीं, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ओके, कोई बात नहीं। ओके, एंड आपने जो डेटाबेस है, डेटाबेस के लिए क्या यूज किया है? क्योंकि यूजर जब लॉगिन करता है, रजिस्टर करता है, सो उसको ऑथेंटिकेट करना, ये सारी चीजों के लिए आपने क्या चीज यूज की है? डेटाबेस में ऐसा था कि हमें एक रियल टाइम डेटाबेस चाहिए था कि जब भी यूजर क्वेरी आउट करे या फिर कोई भी डेटाबेस में चेंजेस हो तो यूजर को डिले ना हो, इसलिए हमें एक रियल टाइम डेटाबेस चाहिए था। और आजकल नो सीक्वल का ट्रेंड है, तो हम फायरबेस डेटाबेस के साथ गए। फायरबेस डेटाबेस के साथ हम फंक्शंस यूज करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए, और ऑथेंटिकेशन के लिए फायरबेस ऑथेंटिकेशन, और स्टोरेज के लिए फायरबेस स्टोरेज। तो एक फायरबेस एज अ कंप्लीट पैकेज वर्क करता है बैकएंड में। ओके, तो यहाँ पे आपने फायरबेस जो है, फायरबेस को पूरा का पूरा जो गूगल का प्रोडक्ट है फायरबेस, उसको यूज किया है। मतलब जो फ्रीली जो देता है फायरबेस जो टेस्टिंग करने के लिए, वो वाला चीज यूज किया है, या फिर आपने पेड कुछ पे किया है उस चीज के लिए? सो फायरबेस का एक्चुअली ब्यूटी ये है कि आप अगर पेड प्लान भी लेते हैं तो वो पहले आपको फ्री प्लान पूरा कंज्यूम करने देता है, एंड देन वो आपको चार्ज करता है। सो फायरबेस के दो ही प्लान है, या तो आप पे कीजिए या आप फ्री यूज कीजिए। तो क्योंकि ये कमर्शियल वर्क था, दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर द पेड प्लान। एंड करंटली पेड प्लान के काफी कम एक्सपेंसेस है बिकॉज ऐप इनिशियल स्टेजेस में है। एंड गूगल क्लाउड पर भी आपको कुछ थोड़ा $100-200 फ्री मिलता है। फर्स्ट टाइम। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि वो चार्जेस किस तरीके से होते हैं? जैसे स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं सर कि फायरबेस जो है, फायरबेस फ्रीली अवेलेबल है, गूगल प्रोवाइड करता है, एंड अगर मैं उसका पेड वर्जन यूज करता हूँ, सो उसमें कैसे वो चार्ज कैसे करता है हमें? पर आवर करता है, पर डे करता है, पर क्लाइंट करता है, पर यूजर, कैसा होता है? फायरबेस काफी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसका जो फ्री प्लान है वो बहुत ज्यादा चीजें प्रोवाइड करता है फ्री में। जैसे आप अभी पिकअप में लॉगिन करने के लिए आपको फोन नंबर से OTP आता है,
सो अगर हम खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फायरबेस का एक स्टेबल है। यस, फायरबेस का एक स्टेबल प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें फायरबेस इजी टू इम्प्लीमेंट होता है पूरा काफी। सो इसमें जो हमारी अभी लिमिट है तो शायद डेली 100 OTPs की लिमिट है और मंथली 1000 OTPs की लिमिट है। अगर हम इसको एक्सीड करते हैं तो उसके पर OTP के चार्जेस लगते हैं। पर ऐसा है कि अगर आपका ऐप अगर इतना बड़ा नहीं होता है तो आप जनरली फायरबेस के फ्री प्लान में आप पूरा काम हो जाएगा। फ्री वाले प्लान में पूरा हम कर सकते हैं। अगर इनिशियली हमें स्टार्ट करना है तो कोई सर्वर वर्वर के चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। हम फायरबेस को एज अ बैकएंड रखते हुए हम पूरा हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट, राइट? सिमिलरली फायरबेस डेटाबेस पे रीड एंड राइट ऑपरेशंस के ऊपर चार्जेस लगते हैं। सो इनिशियली 10,000 20,000 रीड राइट ऑपरेशंस फ्री होते हैं मंथली। अगर आपका ऐप काफी पॉपुलर है तो आपके रीड राइट ऑपरेशंस बहुत ज्यादा होंगे तो फिर उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। जैसे आपने कितने बार रीड किया, कितने बार राइट किया डेटा, तो उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे और वो काफी कम ही होते हैं। ओके, मतलब निग्लिजिबल अमाउंट होता है, इतना नहीं होता है। ओके, तो आपने फायरबेस को जब लिया तो फायरबेस के अलावा आपने कोई सर्वर वगैरह लेना पड़ा, डेडिकेटेड सर्वर जिसमें आप आपका डेटा रख रहे हो, या फिर फायरबेस आपका बैकएंड जो है वो इकलौता एक फायरबेस है? सो हमने Amazon AWS का यूज किया है। Amazon AWS फायरबेस जैसा है पर Amazon AWS के फ्री प्लान्स थोड़े लिमिटेड है। तो Amazon पे AWS में एक EC2 इंस्टेंस पे हमारा Node.js का सर्वर है और S3 बकेट में हमारी वेबसाइट होस्टेड है। और जो भी एसेट्स होते हैं वेबसाइट के वो भी S3 बकेट्स में है। और जो DNS कॉन्फ़िगरेशन है पूरे वेबसाइट का वो AWS Route 55 में है एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल AWS से किया है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल AWS से किया। ओके, थैंक यू निखिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज ऑल टेक्नोलॉजी। तो आपने टेक्नोलॉजी में आपने रिएक्ट यूज किया है फ्रंट एंड में, बैक एंड में क्या यूज किया है? Node.js। ओके, बैक एंड में आपने Node.js यूज किया है और आपने डेटाबेस एंड रियल टाइम डेटाबेस के लिए आपने फायरबेस को यूज किया है, आपने फुल पैकेज। एंड साथ में AWS के इंस्टेंस आपने यूज किए, PC2 इंस्टेंस को आपने यूज किया है, राइट? ओके, सो ये हमारा खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी जो टीम है 3 लोगों की, सो आप ही लोग डेवलपर हो या आपके अलावा भी कोई लोग है जो डेवलपमेंट के लिए आपको हेल्प करते हैं? सर कंप्लीटली हम 3 ही डेवलप करते हैं। एंड जब फंसते हैं तो जैसे मैंने आपसे भी काफी बार पूछा था, जब ऐप इंडेक्स नहीं हो रहा था, सब पूरा प्रोजेक्ट बन गया था। सो मेनली पूरा काम हम ही करते हैं। एंड जब कहीं फंसते हैं तो आपसे या और भी काफी टीचर्स एक्सेट्रा से पूछते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो काम है वो डिवाइड है या सब लोग सब कर लेते हैं? मतलब होता है ना कि फ्रंट एंड ये बंदा करेगा, ये बंदे का कलर कॉम्बिनेशन एंड सब चीजें अच्छी है तो इसको फ्रंट एंड दे दो, बैक एंड का काम ये कर सकता है, टेक्निकल बंदा है ये बैक एंड कर सकता है तो इसको बैक एंड का काम दे दिया, एंड डेटाबेस ये अच्छे से कर सकता है, इसको क्वेरी वगैरह चलानी आती है तो इसको क्वेरी का काम दे दिया। तो ऐसा आपने डिवाइड किया था प्रोजेक्ट को या फिर सभी ने इंडिविजुअली सभी काम कर लिया, ऐसा वाला था? तो सर हमारे इसमें बैकएंड अथर्व करता है। ओके, अथर्व, हाँ। एंड बैकएंड छोड़ के जो भी काम है वो कोई भी कहीं भी कैसे भी कर लेता है। अच्छा, तो बस स्टार्ट होते हुए हम प्रोटोटाइपिंग की स्टेज में एक UI सेट कर लेते हैं ऑलमोस्ट, एंड उसके बाद सिर्फ उसी को देख के डेवलप करते जाते हैं। ओके, मतलब एक अपने पाथ्स डिसाइड कर लिया है, देन उसको लेके हम थोड़ा कंटिन्यू करते हुए जाते हैं। ओके, राइट गौरव। ओके, नेक्स्ट है, आपके अलावा आप जैसे डेवलपमेंट टीम में हो वैसे सपोर्टिंग टीम में कोई है जैसे ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गया है या फिर आपने किसी पर्सन ने अगर वो जो है क्या बोलते पिकअप ट्रक को बुक किया बट वो बुक नहीं हो पाया या फिर उसको जो लोकेशन है वो प्रॉपर नहीं मिल पाई, तो इसके लिए आपका कुछ सपोर्टिंग के लिए है कुछ? लोग ने एक वेब एडमिन बना के दिया है जो बेसिकली हम लोग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है पिकअप पे, ऑपरेशंस अलग टीम हैंडल कर रही है, पर हमने उनको एक वेब एडमिन फैसिलिटेट करके दिया है तो उसमें उनको सारे रियल टाइम अपडेट्स दिखते रहते हैं कि ड्राइवर की स्टेटस क्या है, बुकिंग की स्टेटस क्या है, अगर कोई कस्टमर का कुछ नई बुकिंग्स आती है तो नोटिफिकेशंस आते हैं उनको, तो ताकि वो बुकिंग्स के ऊपर प्रोसीड कर सके आगे। सो अभी हम ऑपरेशंस में तो इन्वॉल्व नहीं है पर हमने उसके लिए सारे चीजें बना के दी है उनको, ऑपरेशन स्मूथली रन। ओके, थैंक यू। सो आप लोग अभी फिलहाल के केस में ऑपरेशन में नहीं हो,
सो अगर आप ऑपरेशन में नहीं हो तो जो वो हैंडलिंग टीम है वो आपसे कम्युनिकेट करती है क्या, मतलब बार बार आपको प्रॉब्लम देती है, सर वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ होता है कि चल रहा है अभी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्टेबल चल रहा है? नहीं, बग्स तो आते रहते हैं, चेंजेस भी आते रहते हैं, हाँ हाँ। और वो हमें उस तरह से कम्युनिकेट भी करते हैं। ओके ओके, मतलब अभी भी मतलब उसका जो है हमेशा कोई भी एप्लीकेशन बनता है तो वो कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, सभी जन बोलते हैं, और ये तो हमारे केस में भी है। हम जब कोई भी कोर्स निकालते हैं तो वो कभी भी फाइनल कोर्स नहीं होता, उसमें अपडेटेशन करते रहना पड़ता है हमें। सो वैसा ही है ना आपका भी, मतलब ऐप हमने डाल दिया उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कभी अपडेट नहीं आएगा, आपको थोड़ा थोड़ा जो भी बग्स आते हैं उसको इम्प्रूव करते हुए उसमें अपडेट्स लाना पड़ता है, राइट? जी जी। ओके, तो ठीक है, इस ये वाले के लिए इतना ही है। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन सबसे बड़ा स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगा आप लोगों को? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपने कंपनी स्टैब्लिश की तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फाउंडर था सो उसने पैसा दिया, सो तो भी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट, पूरा बताने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन से पूरा मतलब थोड़ा सा बताओ जितना आप बता सकते हो। तो हम तो सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी का ही डिस्क्लोज कर सकते हैं, हाँ। बाकी उन लोगों के ही हाथ में है। सो स्पीकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको अगर कोई भी ऐप बनाना है, चाहे आप जोमेटो बनाना चाहे या फेसबुक बनाना चाहे, हाँ आई कैन से दिस थिंग कि आप फ्री में उससे स्टार्ट कर सकते हैं। आज की Right. डेट में, ओपन सोर्स की डेट में, आप कोई भी चीज फ्री में स्टार्ट तो कर सकते हैं, एंड एज एंड व्हेन आपके पास कस्टमर्स आते जाते हैं तो आप वो उसे स्केल अप करना बहुत इजी हो जाता है। तो हमारे केस में हमारा ऑलमोस्ट रनिंग कॉस्ट 2 to 3,000 पर मंथ तो है इस स्टेज में भी, पर जो हम मतलब अगर AWS, हाँ गूगल इन सबको देते हैं। ओके, सो गौरव, एक सिंपल क्वेश्चन है, एज ए बिगिनर अगर कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है वो उसका एप्लीकेशन बना के उसको डिप्लॉय करना, तो उसको पर मंथ कितना ही लग सकता है? तो सो बेसिकली अगर आप वेब चाहते हैं तो वेब पे आप फ्री डोमेन्स भी पा सकते हैं। राइट। आप फ्री होस्टिंग, अगर स्टैटिक है तो फ्री होस्टिंग मिल जाती है गिटहब पे, हाँ। जो कभी डाउन नहीं होती या रेयरली डाउन होती है। हाँ। आपको SSL सर्टिफिकेट लगता है, वो आप क्लाउडफ्लेयर से फ्री में ले सकते हैं राइट। फॉर बिगिनर्स। हाँ तो आपका वेब एप्लीकेशन स्टैटिक है तो वो तो चुटकियों में बन गया विदाउट एनी कॉस्ट। कॉस्ट। एंड्रॉइड एप्लीकेशन है तो आपको $1,200 वन टाइम पे करना पड़ता है, उससे आप प्ले नहीं स्टोर भाग में, सकते हो, आपको पे करना ही प्ले पड़ेगा। स्टोर में अपलोड करने के लिए। यस। हाँ राइट। ओके। एंड iOS अगर आप करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू हैव डीप पॉकेट्स, क्योंकि iOS पे काफी एक्सपेंसिव है चीजें। राइट राइट। हाँ हाँ। iOS के लिए And- आपको एप्पल के इक्विपमेंट्स लगेंगे, हाँ, उसके लिए पूरा पहले उसका। इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी है। मतलब आपको विदाउट book लगेगा। विदाउट मेरा कहते हैं मैक का लैपटॉप में कर ही नहीं सकता हूँ डेवलपमेंट, सबसे पहला डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट तो वही लग जाता है, मतलब मुझे एप्पल का लैपटॉप लेना ही लेना पड़ेगा 60 से 70 हजार का, देन ही मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ, राइट? ओके, Yes. नेक्स्ट। एंड क्या कॉस्ट लगती है? अगर एंड्रॉइड आपको बोला अगर Okay. आपको वेब सर्वर्स भी फ्री चाहिए तो एक हीरोकू हाँ, करके right. प्लेटफॉर्म है, वो सेल्सफोर्स की वो सब्सिडरी है, आप उस पे होस्ट कर डिप्लॉय सकते हो। करके, हाँ रियल टाइम में डिप्लॉय करके हम उसका आउटपुट ले सकते हैं, राइट 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 अथर्व? और वो यस सर, यस। और उसका डिप्लॉइंग प्रोसेस AWS से इजी है, क्योंकि आपको कोई भी इमेज वगैरह इंस्टॉल नहीं करनी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हीरोकू ही मैनेज मैनेज कर लेता है। और जी, आपको सिर्फ, और वो इजीली गिट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। वहाँ पे तो आप जैसे- वर्जन इंटीग्रेशन भी ऑटोमेटिकली होता है, यहाँ पे क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि वर्जन इंटीग्रेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है? जी, आप CI/CD उसमें ऑन कर दीजिए। हाँ। आप जैसे गिट पुश करेंगे, आपका बैकएंड में हीरो को उसको डिप्लॉय कर देगा। ओके ओके राइट, थैंक यू अथर्व। ओके, सो सेकंड फाइनल, ओके, कितना एक्सपीरियंस आपको लगा, मतलब आपने आप सभी को क्या Node.js आता था, रिएक्ट नेटिव आता था पहले से? क्वेश्चन ये है कि जो टेक्नोलॉजी आपने यूज की है एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, सो Node.js एंड जो रिएक्ट यूज किया है एंड फायरबेस एंड AWS, ये सारी चीजें क्या आपने सिर्फ जब ये जो प्रोजेक्ट आया आपके पास तो उस टाइम ये आपने सीखना चालू की, या इसके पहले भी आपको आता था वो सारी चीजें? सो Node.js में एक्सपीरियंस थे,
हाँ वेब एप्लीकेशंस में एक्सपीरियंस थे, एंड्रॉइड में एक्सपीरियंस थे, लेकिन रिएक्ट नेटिव कंप्लीटली न्यू था। रिएक्ट नेटिव में 0 एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे पे, एंड तीनों को ही। हाँ वेराज रिएक्ट हमें आता था, बट देन स्विच करना रिएक्ट टू रिएक्ट नेटिव, एंड फिर काफी चीजें ऐसी होती है एंड्रॉइड में जो नेटिवली ओएस से एंड्रॉइड से कम्युनिकेट करना है, एंड रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन सैंडबॉक्स हो जाती है। तो फिर उसे चलाना, डीबग करना, वो काफी रिगरस प्रोसेस था। तो काफी चीजें आती थी एंड काफी नहीं भी आती थी। तो इन द प्रोसेस ही सीखा है हमने। इन द प्रोसेस सीखने मिला है, मतलब ऐसा नहीं था कि प्रीवियसली कुछ सीख के रखे थे, हमने जब जब बनाना चालू किया तब तक वो सारी चीजें सीखते भी गए। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन कि अभी तक आपके कितने क्लाइंट हुए हैं और पैसा कैसे निकलता है? ये मेन क्वेश्चन होता है, ये तो स्टूडेंट का मतलब सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। कोई भी पूछेगा अरे यार तू कर रहा है, ओके अर्निंग बता, अर्निंग कैसे होती है, क्लाइंट्स कितने आएंगे, कितने डाउनलोड्स पे कितना पैसा, करोड़पति का होगा। सो ये सारे जवाब का आंसर दो, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दो। सो कैसे क्या होता है ये सारा? गौरव ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाएगा क्योंकि हम लोग में कम्युनिकेशन गौरव ही बेटर करता है। ओके, सो पैसे का पूरा हिसाब जो है वो गौरव करता है। सो गौरव उसका आंसर देगा। सो गौरव प्लीज। सो बेसिकली अगर आप प्रोजेक्ट्स के टर्म्स में देखें तो लगभग 6 से 7, 5 से 6 तो हम इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द मनी, तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ता है, आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो कि आपको मैन पावर कितना लगेगा। मैन पावर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम 3 लोग हैं, देन आपको ये भी सोचना पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट बनने के बाद डिप्लॉय करने के लिए कितना ये चार्जेस वगैरह लगेंगे आपको, देन आपको कितना टाइम लगेगा, फिर उसकी कितनी इंटेंसिटी क्या है वो डेवलपमेंट की। जैसे वेब का प्रोजेक्ट हो एंड एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट हो, एंड वेब का प्रोजेक्ट 3 गुना बड़ा होगा तो भी हम वेब का प्रोजेक्ट ही प्रेफर करेंगे, बिकॉज एंड्रॉइड में स्पीड आपकी 3 टाइम्स स्लो हो जाती है, आप कितने भी अच्छे कोडर क्यों ना हो। तो उस कारण से फिर हम एक एस्टिमेट बनाते हैं एंड पार्टी को प्रपोज करते हैं। एंड हमारा एक रूल बहुत अच्छा है हमारे लिए तो एटलीस्ट, कि हम डिप्लॉयमेंट का एक भी खर्चा बेयर नहीं करते। तो जो पैसा है वो डेवलपमेंट चार्ज है, एंड क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड हमारा क्रेडिट कार्ड है, हम उसी से सब कुछ डिप्लॉय करके देते हैं। ओके, मतलब उसका जो पैसा है वो हमारा पैसा है। ओके, राइट। ओके, सो गौरव, हम क्वेश्चन ये है एक्चुअली कि डाउनलोड्स पे पैसा मिलता है या अर्निंग कैसा करता है जो एप्लीकेशन होता है? बहुत जनों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर मैंने एप्लीकेशन बना दिया और मेरा पैसा कब अर्निंग करना स्टार्ट होगा। सो उसका आंसर क्या है कि जैसे मैंने कर दिया एंड मेरे 100 या फिर 1000 डाउनलोड्स हो गए तो मेरे को कितना अर्निंग मिलेगा? एक्चुअल में ये पता है कि एडवर्टाइजमेंट से होता है, बट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट समझ नहीं पाते, तो उसका वो आंसर आप ब्रीफली दीजिए कि किस तरीके से अर्निंग जो है वो होती है एक्चुअल एप्स वगैरह में। सर एप्स में आपको एक्चुअली गूगल एड्स ऑन करने पड़ते हैं अपने ऐड में, अपने ऐप में या फिर वेबसाइट पर। आपको एक अच्छा खासा पोजीशनिंग देना पड़ता है उन्हें, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होती है एंड देन उसमें वो एड्स का कंटेंट अपना दिखाते रहते हैं। आपकी जो ऐप की अर्निंग होगी वो चाहे आपके 1 करोड़ डाउनलोड्स हैं एंड उस पे एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो नहीं होगी। हाँ, राइट। सो आपकी अर्निंग सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से होती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट के 2 स्ट्रीम होते हैं। या तो अलावा आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे पिकअप में एड्स नहीं आती है क्योंकि पिकअप एक सर्विस है, तो वो सर्विस यूज करने का कस्टमर पैसा दे रहा है, सो पिकअप और सर्विस प्रोवाइड करके कर रहा है। पर जैसे कोई अगर दूसरी एप्लीकेशन है जैसे MX प्लेयर है, लूडो किंग या फिर प्लेयर में लूडो किंग, सो उनमें वो लोग ऑन एड से कर रहे हैं। पर अगर आप जैसे कोई ई कॉमर्स बना रहे हैं तो उसमें आप अपने सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स बेच के पैसे सेल करके आप वो इंसेंटिव्स टाइप वो कमाते हो, राइट? ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मिथ है वो दूर हो गया है कि जो अर्निंग होती है वो डाउनलोड्स पे नहीं होती कि 1000 डाउनलोड्स या फिर 100 डाउनलोड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डाउनलोड्स का कुछ नहीं है, यहाँ पे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो एडवर्टाइजिंग, जैसे निखिल ने बोला एंड गौरव ने बोला,
एडवर्टाइजिंग एंड सेकंड सर्विस एंड प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर ही आपका जो एक्चुअल कॉस्ट जो निकलता है कंपनी को जो मिलता है वो सारी ये चीजों से मिलता है, कोई डाउनलोड्स वगैरह से नहीं होता। जैसे गौरव ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि सर अगर आपने 1000-10,000 डाउनलोड्स कर लिए बट अगर ऐप के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिखी नहीं रही है तो कोई भी अर्निंग नहीं होगी, दैट इज जीरो अर्निंग। सो दैट इज ऑल। तो लास्ट एंड करते हैं आज का सेशन। तो ये सारे जन थे हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने खुद का ओन एप्लीकेशन डिजाइन एंड डेवलप किया एंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। उस एंड करने के पहले मैं वो उस एप्लीकेशन को एक्चुअल में प्रेजेंट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ ये आपको जो एप्लीकेशन दिख रहा है ये एप्लीकेशन इन लोगों ने बनाया है, दैट इज नथिंग बट अ पिकअप। एंड मैं बोलूँगा कि जिनको भी जिन लोगों को भी कुछ भी अपना जो प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ लेके जाना है, सो प्लीज़ उन लोगों ने भी यही जो लोकल ऐप है हमारा दैट इज़ नथिंग बट अ पिकअप, इसको यूज़ करना चाहिए और डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज लोकल को ही वोकल करो जैसा बोला जाता है, पीएम ने बोला था हमारे। सो सेम चीज़ यहाँ पे आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट्स को या फिर गुड्स को यहाँ से वहाँ लेके जाना है या फिर ट्रांसफर करना है तो आप इनके एप्लीकेशन को यूज कर सकते। हाँ, इंडिया का क्या, ये तो नागपुर का एप्लीकेशन है। सो मैं बोलूंगा कि ये एप्लीकेशन को सजेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे एक गौरव मेरे को क्वेश्चन है, यहाँ पे दो एप्लीकेशन दिख रहे हैं मुझे। फर्स्ट वन इज पिकअप एंड सेकंड वन इज योर पिकअप ड्राइवर। तो नॉर्मल यूजर ने कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए? पिकअप जो फर्स्ट मेरा जो है वो नॉर्मल यूजर्स के लिए है जिनको हमारा जो सामान है वो लेके जाना है। एंड जो सेकंड जो है वो ड्राइवर जो लिखा है वो ड्राइवर्स के लिए है, जो ड्राइवर्स पिकअप में काम करते हैं, सामान पहुंचाते हैं यहाँ से वहाँ। हाँ, वो पिकअप ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं। ओके, मतलब जो जिनके पास भी व्हीकल्स है, जिनको भी अपना बिजनेस को भी ऑनलाइन लेके जाना है और जो ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर उनके पास गाड़ियां वगैरह है, तो वो लोगों को कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है? पिकअप ड्राइवर। एंड जिन लोगों को वो सर्विस को यूज करना है उनके लिए है पिकअप, राइट? राइट, थैंक यू सो मच। एंड अथर्व, आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट को कुछ सजेशंस देना चाहोगे कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिकॉज यू आर अ बैक एंड डेवलपर, राइट? टीम के आप बैक एंड डेवलपर हो। सो अगर किसी को बैक एंड डेवलपर बनना है सो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो इससे रिलेटेड? सबसे पहले तो हमें बैक एंड डेवलपर बनने के लिए समझना पड़ेगा कि बैकएंड सिर्फ डेटाबेस से ही रिलेटेड नहीं होता है। आपको अगर बैकएंड समझना है तो बैकएंड वर्क करता है पूरा सर्वर पे। तो सर्वर एक ऑटोनोमस सिस्टम होता है, वो आपका स्पेयर पीसी भी हो सकता है, वो AWS का सर्वर भी हो सकता है। वो एक ऑटोनोमस सिस्टम है जो आपकी पोस्ट प्रोसेसिंग करता है। फॉर एग्जांपल, आप जब फेसबुक चलाते हो, आप कोई पोस्ट करते हो तो उसके जो नोटिफिकेशन है वो सब आपके फ्रेंड्स को चले जाते हैं। अब यही चीज अगर हम क्लाइंट के सॉफ्टवेयर पे करेंगे और किसी के 2000 फ्रेंड होंगे तो वो प्रोसेसिंग, वो 2000 फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन जाने की प्रोसेस उसके क्लाइंट एंड पे होंगी, जो कि हम नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक बेसिकली रिसोर्स इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसी सब चीजें हम बैकएंड या फिर सर्वर पे की जाती है। मतलब सिंपल है कि बैकएंड जो डेवलपर होता है वो लॉजिक फॉर्मेशन के लिए होता है एंड सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस रिलेटेड ही वर्क नहीं करता, वो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक जो होता है वो एक्चुअल में बैकएंड डेवलपर ही डिजाइन करता है, राइट अथर्व? जी जी। और एक डेटाबेस का जो एक्सेस है वो हमें सेंट्रलाइज रखना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एंड्रॉयड में जनरली जावा से हम कोड करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि डेटाबेस क्वेरी जावा में करें और फिर वेब पे पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट में करें। तो जो क्वेरिंग है उसको हम सेंट्रलाइज करते हैं और उसको हम कनेक्ट करते हैं n नंबर ऑफ डिवाइसेस से रेस्ट एपीआई से। डेटा सेंट्रलाइज जी, तो डेटा सेंट्रलाइजिंग हम करते हैं। आपको अगर बैकएंड डेवलपमेंट में आना है तो आपको जरूरत नहीं कि आप हर एक टेक्नोलॉजी सीखे बैकएंड डेवलपमेंट पे, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। Node.js है, Django है, फ्लास्क है, क्लोजर है और जावा का सर्वलेट है। आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी अच्छे से कीजिए, आपको बाकी की टेक्नोलॉजी भी इजीली समझ में आएंगी। और डेटाबेस में आप जनरली आप NoSQL डेटाबेस प्रेफर कीजिए, क्योंकि जो SQL डेटाबेस ओरेकल होता है
उसका सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है और उसके बहुत सारे रिसोर्स लगते हैं। तो फ्री जो मिलते हैं NoSQL डेटाबेस, आप वो उसके साथ जा सकते हैं बिगिनर्स के लिए। ओके, मतलब वो प्रेफर हम कर सकते हैं, NoSQL डेटाबेस को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू हमारा जो SQL वाला जो होता है वो वाला। ओके, बिगिनर्स के लिए। हाँ, बिगिनर्स के लिए। ओके, राइट राइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू सो मच निखिल, एंड थैंक यू सो मच अथर्व। आपने जितना भी कुछ आपका जो वैल्यूएबल हमारे लिए टाइम निकाला, बिकॉज हमें पता है कि कल जो है आपके इंटरव्यू सेशंस होने वाले, जैसे निखिल ने बताया था मुझे कि कल ड्राइव्स है ना, शायद कल आप लोगों के ड्राइव्स है ना, इंटरव्यू ड्राइव्स है। ओके, सो आपने आपका वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से भी थैंक यू करूँगा आपको, एंड हम सभी की तरफ से आपके लिए विशेष है, बेस्ट विशेष है कि आप अच्छा करें, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिले एंड वो फेमस हो जाए। एंड जिन लोगों को भी ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, सो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड करें। और मैं तो बोलूँगा कि कंपलसरी अगर आपको कुछ भी चीज़ मूव करना है, सो ट्राई कीजिए कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कीजिए। कोई भी बाहर के या फिर चाइनीज एप्लीकेशन को यूज़ करने से तो अच्छा है जो हमारे डेवलपर ने खुद जो डेवलप किया है, उनको सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्ट बोल के आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए। जो इन लोगों ने जो एप्लीकेशन बनाया है, इतने अच्छा इन्फॉर्मेशन, इंडियन डेवलपर्स जो है हमारे, उनको सपोर्ट कीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस। सो थैंक यू सो मच गौरव, निखिल एंड अथर्व, आपका वैल्यूएबल टाइम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते जल्द, ठीक है? इंस्टीट्यूट में आना एक दिन, फ्री जब होंगे तब Yes, उस sir. टाइम, ठीक है? कैसा लगा बात करके, शेयर वेयर अच्छा करके? लगा सर। जी सर। सो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, ठीक है? मोटिवेटेड रहो एंड आप लोग शेयर कर सकते हो जो चीज़ है, आप बहुत सारे लोग देखेंगे, क्योंकि मैं इसको प्रमोट भी करूंगा, सो बहुत सारे लोग देखेंगे। सो लेट्स सी, ये मेरा सपोर्ट है आप लोगों के लिए कि मैं भी चाहता हूँ कि आपने जो भी किया है उस वो थोड़ा सा बूम में आए। मेरे को ज़्यादा ही प्यार है गौरव से, तो मैं चाहता हूँ कि उसने जो भी किया है वो आगे चले, बढ़े। सो देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है? कुछ भी अगर रहा तो आप पूछ सकते हो, टेक्निकल रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं हूँ ओपन, ठीक है? ओपन टू ऑल। रात के 2 बजे तक रहता है मेरा, बाद में पता नहीं, बाद में सो जाओ, ठीक है? तो तब तक मेरे को पूछ सकते हो टेक्निकली कुछ भी। सो थैंक यू सो मच, और मैं होता हूँ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बाद में, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम सर। यार, वेलकम। सी या, बाय बाय थैंक यू बाय फॉर योर बाय। टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।